Okay, good morning students. I am Sibasis Pradhan going to start today your 11th physics. Start with scalar and vector. So the scalar and vector, basically vector is a mathematical tools. So in order to read physics, your mathematical tool must be very clear. So today my point of discussion will be a vector and scalar. So what is scalar and what is vector? My first point of discussion will be that. So scalar and vector, what is a scalar? Again, I am just point a note here, scalar. It is a physical quantity which is completely defined by its magnitude only. So, it is a physical quantity which is completely defined, by its magnitude only. So any physical quantity which is completely defined by its magnitude, that is called a scalar. Some example, I can say mass. Mass is a scalar quantity. Again, distance between 2 points. I am not talking about displacement, distance. So, between 2 points the distance is equal to 2 meter, or between 2 points the distance is equal to 3 kilometer, or tama garu amagar distance is equal to 5 kilometer. So, it is a distance. So, the distance between 2 points is a scalar quantity. So, again I am saying distance. Again, the speed. Suppose mu gadi chalouchi 5 kilometer per hour. That is nothing but a scalar quantity, that is defined by a scalar quantity only by magnitude, that is 5 kilometer per hour. So I can say speed is a scalar quantity. Again I can say temperature. So again temperature, Bartman by room temperature is 28 degrees centigrade, that is a scalar quantity. If I say temperature rose by 3 degrees centigrade, that means the magnitude is rose by, there is a particular direction, that can we consider as a vector quantity. But if I say only temperature, the temperature is a scalar quantity. So mass, distance, speed, temperature, you can say volume. See, these are the physical quantity which is completely defined by its magnitude only. So this physical quantity is called scalar. Next, my point of discussion will be vector. So vector, what is vector? Vector is a physical quantity which is completely defined by its magnitude and by its directions. So a physical quantity which is completely defined by its magnitude and direction, that is a vector quantity. It is a physical quantity. It is a physical quantity which is completely defined by magnitude and directions. It is a physical quantity which is completely defined by magnitude and directions. It is a physical quantity which is completely defined by magnitude and directions. Again, a quantity is called a vector quantity. That means the quantity must satisfy the triangle of addition. That is, it have both magnitude and direction must satisfy the triangle of vector addition. This is the necessary condition. Again, the sufficient condition will be it must obey triangle law of vector addition. Triangle law of vector additions. So, if a physical quantity have both magnitude and direction, also cannot be a vector if it does not obey the triangle of addition. Like for example, I can say current. Current is a, okay, just I am saying current. Suppose here I am saying 5 ampere current is going.
moving 5 ampere of current is moving in this wire. Again this wire will be divided into two portions. Let us, here it is 2 ampere current. Then what is the current over here? I can say it is 3 ampere current. Oh, it does not depend upon this angle. एटा 30 डिग्री हो कि एटा 60 डिग्री हो कि एटा 90 डिग्री हो, it does not depend upon this angle. So the current is always added algebraically. So the current is always added algebraically, but it have magnitude and it have directions. So it both magnitude and direction, still I am saying it is not a vector. It is not a vector. असलियत रे ये गोटे टेंसर क्वांटिटी. मात्र तुम 11th रे आम 11th हो कि 12th हो आम वेक्टर और स्केलर पढ़ुचे, जेहेतु तुम पाखे टेंसर किसी ऑप्शन नहीं, ताले आम 11th रे एटा कहूचे इट इज ए की क्वांटिटी बाबा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी according to the context of 11th syllabus, but असलियत रे करंट होची टेंसर क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी जोटा हम सिलेबस रे नहीं. सो हम सिलेबस हिसाब रे दैट इज स्केलर एंड वेक्टर. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इट इज a physical quantity which is completely defined by its magnitude. What is vector? It is physical quantity which have both magnitude and direction. Again a physical quantity is said to be vector if it have both magnitude and direction. Again it must obey the triangle law of vector addition. If it obey all the three, then only I can say it is a vector quantity. So vector means both magnitude and direction also satisfied the triangle law of vector addition. I think next class I am going to discuss the triangle law of vector addition. So presently मु गोटे जिनस तुमको कहू चाहूँगी वेक्टर कहले कौन बुझ, वेक्टर कहले या बुझे जार मैग्नीट्यूड अच्छी आ डायरेक्शन अच्छी आ जे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करुची, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो करुची. सो वेक्टर एमती कहि परिनी 2 मिशन 2 इज इक्वल टू 4 एमती कहि परिबी नाही. बट इफ इट इज स्केलर 2 + 2 इज इक्वल टू 4. द स्केलर ओबे नॉर्मल एडिशन, दैट इज algebral. 1 + 1 is equal to 2, 10 + 10 is equal to 20, 1 + 2 + 3 is equal to 2 मिश्रण 3 5 मिश्रण 1 is equal to 6. But if I am saying vector, suppose I am saying this is a particle. To this particle your force is equal to 5 Newton. Again another force will be 5 Newton. So in this case 5 Newton plus 5 Newton is equal to 0 because this is a force. Force have magnitude and force have directions. So again it is 5 Newton. It is 5 Newton acting on a particle. Two force act on a particle, same magnitude and opposite in direction. They will cancel each other. So the net force on this particle will be 0. So the net force on this particle will be 0. So again I can say your example of your vector can be, just I am writing here example. Again see current is which quantity? Current is असलियत टेंसर क्वांटिटी. बट तुम 11th कॉन्सेप्ट जदि पचारि जिवो करंट इज की क्वांटिटी तुम कहबो करंट इज स्केलर क्वांटिटी. काहे यार मैग्नीट्यूड अछि, यार डायरेक्शन अछि, बट ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करू नाही. सो तुम भाषा रे बुझिया को गले जहार मैग्नीट्यूड अछि, डायरेक्शन अछि और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करूची ताकू मु कहबी वेक्टर. जी ये मानु नाही ताकू कहबी स्केलर. तुम पई टेंसर क्वांटिटी र किछि नाही वर्तमान पई, सेटा मुनरु काढी दियो. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर. सो आई कैन से the example of vector is a displacement. Again जेतले मोशन इन 1D पढ़ेबी सेतले डिटेल चर्चा करी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भीतर रिलेशन कोन. सो डिस्प्लेसमेंट PLA आ जो पिला माने पढ़िथिबो 9th रे कि 10th रे किछि पिला पढ़ि जाउछंदी. सो ताका पई किछि असुविधा नै. डिस्प्लेस MENT डिस्प्लेसमेंट. अगेन वेलोसिटी सेठी कहतले स्पीड, एठी कहूची वेलोसिटी. अगेन आई कैन से एरिया. एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिले. सेकेंड ईयर बहुत काम दो. एरिया वेक्टर अच्छी. एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एरिया रा डायरेक्शन अच्छी. हाँ ठीक शुणुच, एरिया रा डायरेक्शन अच्छी. डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. और मैग्नीट्यूडल लेंथ इनटू ब्रेथ. मैग्नीट्यूडल लेंथ इनटू ब्रेथ एंड direction of area is perpendicular to the surface. So area is a vector quantity. मन रखिता area is a vector quantity. Area is not a scalar quantity. Area is not a scalar quantity. Again something you are going to read. Force. Okay, just write I am here force. फोर्स रो मैग्नीट्यूड अछि और फोर्स रो डायरेक्शन अछि. जेतु फोर्स रो मैग्नीट्यूड अछि और फोर्स रो डायरेक्शन अछि तारी ये गोटे कहबा वेक्टर क्वांटिटी. जदी आकु मु तळ आकु छाडीबी कुआड जिवो ए मार्कर टाकु छाडी देई मन कर कुआड जिवो तळकु जिवो. जेतु तळकु जिवो काहे की तळकु जाउ जिबले काहे की हमरे धरती मा माने अर्थ माने अर्थ तार सेंटर आडू ताकू टाणुची. केतेरे टाणुची बिले 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो को भी वस्तु यदि पडियो से तळकु जिवो विथ एन
acceleration of 9.8 meters per second square. So तार direction अच्छी है तारी magnitude अच्छी था magnitude वाला 9.8 meter per second square से तौलकु जीवो सही rate से तौलकु जीवो. So your acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity because it have magnitude. The magnitude is equal to 9.8 meter per second and the direction is toward the center of the earth. So I can say acceleration is a vector quantity because it have both magnitude and it have directions. Also it satisfied the triangle law of vector addition. So ये मोरी overall चर्चा थिला स्केलर कहले कौन बुझ वेक्टर कहले कौन बुझ स्केलर दी तीन टा एग्जांपल आ वेक्टर दी तीन टा एग्जांपल आ ऊपर हम फर्दर पढ़िबा जेते टॉपिक आगु आगु जीवो. नेक्स्ट हेडिंग दियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हाउ ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड. नेक्स्ट गिव द हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. Representation of vector. So a vector can be represented by a line segment with arrowhead over it. Just note it up. A vector can be represented. A vector can be represented by a line segment with arrowhead over it. So a vector can be represented by a line segment with arrowhead over it. ମୁଁ आगुर कही वेक्टर कहले कौन बुझे जार मैग्नीट्यूड थी जार डायरेक्शन थी. यही केस में कौन कहले वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट, गोटे लाइन सेगमेंट with arrowhead over it, with arrowhead ऊपर it. गोटे लाइन थिबो लाइन सेगमेंट जोटा तुम कहूचो लाइन सेगमेंट with arrowhead over it, that is nothing but a vector. So this is a vector. So a vector is a line segment with arrowhead over it. Line segment with arrowhead over it is called vector. So the magnitude, okay, vector कहले कौन बुझे magnitude बुझे और direction बुझे, ताल the line segment will give the magnitude, where line segment gives the magnitude. Line segment gives the magnitude of the vector and the arrowhead gives the direction of the vector. Line segments gives the magnitude of the vector whereas arrowhead gives the direction of the vector. Again repeat kuruchi. So representation of vector, a vector can be represented by a line segment with arrowhead over it. So the length of the line segment will give its magnitude, whereas the arrow that will give the direction. So this is nothing but the representation of vector. A vector can be represented by a line segment with arrowhead over it. The length of the line segment will give the magnitude and the direction of the arrowhead gives the direction of the vector. Again, a vector is a tail and is an head. A vector is a tail and the vector is a head. This point or the starting point is called the tail of the vector. This point is called the tail of the vector, whereas the arrowhead is also called head of the vector. This is called head of the vector. This is a tail and this is a head. So a vector has a tail and a vector has a head. So this is nothing but the representation of the vector. बर्तमान कही पारिबी एटा बर्तमान नोट डाउन कर दियो. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इज ओवर. अगेन कहूँ शुण रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहले कौन बुझ. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहले गोटे लाइन सेगमेंट बुझे जार को जगह गोटे टेल थिबो आ जार गोटे जगह गोटे कौन थिबो बिले हेड थिबो. So again I say this tail is nothing but it is a point. Obviously suppose this is my x-axis, again this is my x-axis, and suppose this is my y-axis, and suppose towards you that is your z-axis. That means this board is in xy plane. This board is in xy plane. Suppose I am saying this is a line segment with arrowhead over it. Let us I say this is a point whose coordinate is x1 comma y1 comma z1 in general.
So suppose this is a point called x1 comma y1 comma z1, and this is a point called x2 comma y2 comma z2. Again I am saying suppose this is a and this is a v, then AB vector, how AB vector will be represented? I say AV vector will be represented by like this. So if it is AB vector, just make AV vector, this vector will be coordinate of B minus, or we can say coordinate of head minus coordinate of tail. So a vector is nothing but a combination of head and tail. The head will give the direction and the tail will give the starting point, from the a point where the vector is originated. So AB vector is nothing but head position or head coordinate minus tail coordinate. If AB vector, I can see V will be the head. Now I can say B pointer coordinate minus A pointer coordinate, that is nothing but my BA vector. In this case my V vector, which is located at the point called x2 y2 z2 minus A, which is x1 y1 and z1, which is x1 y1 and z1. Now I am going simply mathematics. So this is B point x coordinate, this is A point x coordinate. So I can say x2 minus x1 तांका subtraction हला परे A vector AB vector रो गोटे point हला, that is x2 minus x1. Similarly y2 minus y1, similarly z2 minus z1. I'll get like this. That means AV vector is x2 minus x1 into x cap plus y2 minus y1 into y cap plus z2 minus z1 into z cap. So your AV vector will be this much. Now in this case there are three parameters. One is x cap, another is y cap, another is z cap. So these are called the direction vector. आगु पढ़ेबी एबे जेहेतु मु रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहू छी, जस्ट गोटे इंट्रोडक्शन नै जो x कैप कोन, y कैप कोन और z कैप कोन. मु कहली x कैप. व्हाट इज x कैप? x कैप is the direction vector along x axis. Is the direction vector along x axis. What is y cap? I can say direction vector along y axis. Again, what is z cap? Direction vector along z axis. ए जिनसा बुझा आउरी मोर क्लियरली जो एग्जांपल कहूँ से बुझा चेष्टा कर. मनकर मु कहूँ ए पार्टिकल x दिग आड़ को जाऊँची 2 मीटर पर सेकेंड. ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स x एक्सिस विथ 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर per second माने speed. A particle is moving towards x axis, that means it is giving velocity. So I can say velocity of the particle, it is moving 2 meter per second. So I can say 2 meter per second कुआडे x दिगाड़ को सेति में कोई भी x cap. So velocity of the particle is equal to 2x cap. Obvious the unit will be meter per second. Similarly यदि मु कहबी a car is moving towards y direction with speed 9 km per hour. That means a car is moving towards y direction with speed 9 km per hour. That means 9 km per hour will be magnitude, but the direction is towards y direction. So I can say y cap. Now understood what is the meaning of this? I can say x cap is nothing but the direction vector. Y cap is called the direction vector. से केवल कौन यूज करा जाए? Direction देवा पे यूज करा जाए. So जितने मु कहली what is vector? Again repeat goes what is vector? Vector is a line segment with arrowhead over it. In this way I can represent the vector. A vector have both magnitude and have directions. So गोटे vector रो
एक्स दिगरे भी किसी जाई पारे गोटे वेक्टर वाई रे भी किसी जाई पारे गोटे वेक्टर जेड रे भी किसी जाई पारे सो गोटे वेक्टर इट इज नॉट मैंडेटरी खाली एक्स रे जीवो सो ये एक्स रे किसी जीवो वाई रे भी किसी जीवो जेड रे भी किसी इन जनरल मु कहूची मने कर this is a b vector a is the tail and b is the head suppose a रो कोऑर्डिनेट हला x1 y1 z1 आ b रो कोऑर्डिनेट हला मने कर हेड रो कोऑर्डिनेट हला x2 y2 z2 ताले मु कहि a b वेक्टर किंद काढी बाबा मु कहि a b वेक्टर हला एटा सदाळे एक फार्मूला करी मन रख सो a b वेक्टर हला head रो कोऑर्डिनेट माइनस tail रो कोऑर्डिनेट in this case the head will be at b and the tail will be at a so मु कहूची b वेक्टर b रो कोऑर्डिनेट माइनस a रो कोऑर्डिनेट सो b रो कोऑर्डिनेट इज x2 y2 z2 and a रो कोऑर्डिनेट इज x1 y1 z1 सो x कोऑर्डिनेट सहित x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करबी y कोऑर्डिनेट सहित y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करबी and z कोऑर्डिनेट सहित z कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करबी हेले मते कोन मिलियो बिले मते मिलियो a b वेक्टर ताले हम कहबी x2 x1 एटा मैग्नीट्यूड से क्वाड जाईची हम कहबी x दिगा आडू जाईची एटा ला y2 y1 क्वाड जाईची हम कहबी से y दिगा आडू जाईची एटा z2 z1 से क्वाड जाईची हम कहूची z दिगा आडू जाईची ताले a b वेक्टर क्वाड गला हम कहली a b वेक्टर ना x2 x1 x दिगा आडू प्लस y2 y1 z दिगा आडू प्लस z2 z1 z दिगा आडू सो a b वेक्टर विल बी x2 x1 x कैप प्लस y2 y1 y कैप प्लस z2 z1 z कैप where x cap, y cap and z cap are called the direction vector in x axis, in y axis, in z axis. आर ना आगु का गुआ में पढ़िबा आकु भी यूनिट वेक्टर कुआ जाए वर्तमान ताकु देखनी जति को सति देखा इज कॉल्ड करेंटली एटा कोन मन रखियो इट इज द डायरेक्शन वेक्टर इन x axis, y axis and z axis respectively. सर x2 x1 कोन सो x2 x1 हैला a b वेक्टर रा x कंपोनेंट लेखुची whereas x2 x1 एटा लिबे दोची बिले whereas एटा लिखि दियो जदी जाने रछि what is x2 x1 एबे मु कहूची x2 x1 is the x component of a b vector is x component of a b vector. Similarly, y2 y1 is y component of AB vector and your z2 z1 is the z component of AB vector. बस so AB vector मुझे कौन कहली गोटे कोऑर्डिनेट यदि सपोज देयर इज ए वेक्टर ए बी ऑब्वियसली ए रो गोटे कोऑर्डिनेट थिबा और बी रो गोटे कोऑर्डिनेट थिबो सो मु वेक्टर काढिबी किंतु मु कहबी हेड रो कोऑर्डिनेट फेडाण दैट इज सब्सट्रैक्शन करिवु टेल रो कोऑर्डिनेट ताले तू मोटा मोटी पाइबु ए बी वेक्टर एक्स रे केते जाउची वाई रे केते जाउची और जेड रे केते जाउची एई जगह रे मु डिफाइन करली तीनटा नुवा जिंस जनक ना हला एक्स कैप ताकू बही रे भी कहउछंदी आई कैप मु धीरे धीरे ताकू भी कहबी जतरा आकु आकु जीबी एक्स कैप ता कोन पिले डायरेक्शन वेक्टर एक्स दिगरे वाई कैप कोन डायरेक्शन वेक्टर ऑफ वाई एंड जेड कैप कोन डायरेक्शन वेक्टर अलोंग z so x cap y cap z cap are called the three direction vector. वर्तमान कहबी x2 x1 को कोन कहबी x2 x1 को कहबी x component of the vector ab y2 y1 को कोन कहबी मु कहबी y component of the vector ab z2 z1 को कोन कहबी मु कहबी z component of the vector ab. बुझिला ओके नेक्स्ट एटा लिखि दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है ए बी वेक्टर एमिति करा जाए ओके आ ऊपर किसी करबा आबे मैथमेटिक्स गोटे क्वेश्चन पिले दउची इफ p is at 0, 0, 0 and q is at 1, 2, 3 find pq vector केते सॉल्यूशंस मु कहबी pq वेक्टर कहबी हेड रो कोऑर्डिनेट माइनस टेल रो कोऑर्डिनेट pq जेतु q हबो हेड माइनस p हबो टेल सो q रो कोऑर्डिनेट दे देछि 1 2 3
माइनस पी रो कोऑर्डिनेट दे देछि 0 0 0 तापर आकु कहबी 1 फेडाण 0 1 2 फेडाण 0 2 3 फेडाण 0 3 सो तापर कहबी पी क्यू वेक्टर हब 1 इंटू एक्स कैप प्लस 2 इंटू वाई कैप प्लस 3 इंटू जेड कैप। सो दिस इज द पी क्यू वेक्टर। जदि जने पचारिबो व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ पी क्यू वेक्टर मु कहबी एक्स कंपोनेंट ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 1, y component of pq vector is equal to 2. In this case, z component of pq vector is equal to 3. Look at here. So x पछपटे जी अछि सी हला x component, y कैप पछपटे जी अछि सी हला y component, z कैप पछपटे जी अछि सी हला z component. So your x component, y component and z component of the pq vector is 1, 2 and 3 respectively. So एही बतैछि व्हाट इज वेक्टर। वेक्टर कहले जहार मैग्नीट्यूड थिबो आ तार डायरेक्शन थिबो। द मैग्नीट्यूड केमिति पिले जानिबो मैग्नीट्यूड हला लाइन सेगमेंट रो दैर्घ्य दैट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। डायरेक्शन क्वाड दबो हम कहबी हेड टा जुआड थिबो सेटा हला डायरेक्शंस। तापर कहली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली हेड आउट टेल रु हेड आड़ को जाउथिबो आ मैथमेटिकली को रिमती रिप्रेजेंट करा जाए। सो जदि गोटे पॉइंट P तार कोऑर्डिनेट देथिबो आ गोटे पॉइंट Q तार कोऑर्डिनेट देथिबो तम पचारिबो PQ वेक्टर केते और AB वेक्टर केते। तू जनरल तरीका रे मन रख वेक्टर माने हेड रो कोऑर्डिनेट माइनस टेल रो कोऑर्डिनेट। सो हेड माइनस टेल हेड जगह जी थो टेल जगह जी थो ता मूल्य पकेबू सदा जो मिशाण कि फेड़ाण करू जहाँ भी करू एक्स कोऑर्डिनेट सहित एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सहित वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट सहित जेड कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ तू समेसन जहाँ रिजल्ट पाइलु से मल्टीप्लाई करू एक्स कैप दैट इज एक्स दिगरे वाई रे जहाँ मैनिपुलेशन कलु से जहाँ भी पाइबू ता सहित मल्टीप्लाई करू वाई कैप आ जेड रो जहाँ भी कलु ता सहित मल्टीप्लाई करू जेड कैप। सो दैट इज योर कंप्लीट वेक्टर पी क्यू वेक्टर। एबे मते चर्चा करियार अछि जेति गोटे वेक्टर मु कहली तार मैग्नीट्यूड आ तार डायरेक्शंस पिले दिस इज अ वेक्टर। सो इफ दिस इज द वेक्टर एबे मु एई थ्रू कहूची दिस इज द वेक्टर ताले ए बी रो मैग्नीट्यूड केते। अच्छा सब पिले डिस्टेंस पॉइंट जानि थियो गोटे पॉइंट x1 y1 z1 आ गोटे पॉइंट x2 y2 z2 ताले डिस्टेंस हला दीटा पॉइंट रो सब ऑलरेडी पढ़ी थियो दैट इज स्क्वायर रूट भीतर x2 - x1 रो स्क्वायर प्लस y2 - y1 रो स्क्वायर प्लस z2 - z1 रो स्क्वायर। देख एटा एक्जेक्टली सेही भलिया हेछि। सो ए बी वेक्टर हला ये प्लस ये ताले मु कहि पिले ए बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड कहार ए बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड पिले एंति लिखा जाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड माने मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड माने कोन मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर ए बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड आकु पिले कहवा जाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ताले मु कहबी ए बी रो दूरता केते सिंपली डिस्टेंस फार्मूला। सो जदि एटा को देखिबू ना डिस्टेंस फार्मूला तू मन पकेबू x2 - x1 होल रो स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल रो स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल रो स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस फार्मूला बट द डिस्टेंस फार्मूला तो कहलु ए और बी जदि ए रो कोऑर्डिनेट कोड x1 y1 z1 और बी रो कोऑर्डिनेट केते x2 y2 z2 ताले डिस्टेंस बिटवीन ए बी x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। बट मु ऑलरेडी गोटे वेक्टर करि के रखिछि ए बी वेक्टर ताले आहार देख बोल से यार मैग्नीट्यूड किन पाइ पिले x कैप पछपटे जे थिबो तार स्क्वायर प्लस y कैप पछपटे जे थिबो तार स्क्वायर प्लस जेड कैप पछपटे जे थियो ता स्क्वायर र रूट ओवर। तो सेम मैनर ले जदि मते कहबो जने कि पी क्यू वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते मु कोन कहि बिले मु कहि पी क्यू वेक्टर रो मैग्नीट्यूड तबे एमति लिखा जीवो पी क्यू वेक्टर रो मैग्नीट्यूड मु कहि स्क्वायर रूट भीतर x कैप पछपटे जे अछि 1 प्लस y कैप पछपटे जे अछि 2 प्लस z कैप पछपटे जे अछि 3 र स्क्वायर जाकु सॉल्व करबी मु कहबी दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 1 14 square root 14 unity square root 14 unity that is nothing but the magnitude of PQ vector. Again repeat करूची magnitude किंत काढिबी square magnitude माने दूरता that is the distance between 2 points. So distance between 2 point ए formula ए वेक्टर को
तू इन जनरल जानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square जदि दीटा पॉइंट p आउ सपोज गोटे पॉइंट a आउ b a अच्छी x1 y1 z1 b अच्छी x2 y2 z2 ताले बिटवीन दिस टू पॉइंट व्हाट इज द डिस्टेंस आई कैन से x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 होल स्क्वायर रा रूट ओवर अगेन ए वेक्टर को देखले सी किए लागुची मु कहबी सी लागुची x कैप पछपटे जी अछि तार स्क्वायर प्लस y कैप पछपटे जी अछि तार स्क्वायर प्लस z कैप पछपटे जी अछि तार स्क्वायर सो एबे मु काढी छी गोटे वेक्टर pq सो वेक्टर pq होला 1 x कैप प्लस 2 y कैप प्लस 3 z कैप ताले pq रो मैग्नीट्यूड केते मु कहबी x कैप पछपटे अछि 1 रो स्क्वायर प्लस y कैप पछपटे अछि 2 दैट इज 2 रो स्क्वायर प्लस z कैप पछपटे 3 दैट इज 3 रो स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 1 रो स्क्वायर 1 2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 9 4 13 1 14 स्क्वायर रूट भीतर 14 यूनिट जहा थी बता रही एकक बुझला सो ये थिला बेसिकली मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर नेक्स्ट मु कोन काढी प्ले डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर नेक्स्ट काढी भी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर समस्त एडा को मे बी डेफिनेशन यूनिट वेक्टर कोन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर कोन टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन एटा कहीकिटा पढ़ाऊे बट मोर पढ़ार तरीका किसी अलग आपको मुझे प्रकार स्टार्ट कर समझती जब यही प्रकार मुझे स्टार्ट करी ताले रियल डेफिनेशन जो मुझे टाइप्स ऑफ द वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहले कौन यूनिटी वेक्टर कहले कौन ये सब जिन क्लीयरली बुझीज कहीं वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन जिते मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन न जानी ताले वेक्टर करी कौन से स्टार्ट कर मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन रु ऑलरेडी मुझे मैग्नीट्यूड चर्चा कर सारे आज नेक्स्ट पॉइंट हम डायरेक्शन मने कर गोटे वेक्टर ए बी अगेन लिसन मने कर गोटे वेक्टर ए बी ताले जदी गोटे वेक्टर ए बी आर दीटा कैरेक्टरिस्टिक थिबो गोटे हला मैग्नीट्यूड आ गोटे हला डायरेक्शन सो मैग्नीट्यूड को पिले मु लिखुची एमितिका ए बी वेक्टर रो मॉड्यूलस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ताले पिले डायरेक्शन कोन लिखिबी मु डायरेक्शन एमति लिखिबी पिले देख ए बी वेक्टर ता ऊपर टोपी दैट इज ए बी कैप सो ए बी कैप विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए बी AB cap will be the direction of AB and the direction of AB general formula that is AB vector divided by magnitude of AB vector again repeat करूची मने कर मते जने पचारियो A vector direction केते मु कहबी A vector divided by magnitude of A vector जदि मते जने को पचारियो XY vector direction केते मु कहबी XY vector direction हला XY vector divided by magnitude of XY vector सिमिलरली जदि जने पचारियो p वेक्टर डायरेक्शन केते मु कहि p वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर ताने बुझियला डायरेक्शन माने कोन डायरेक्शन माने वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन माने कोन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड देख मु कहले ab वेक्टर डायरेक्शन माने कोन ऊपर कैप सो ab कैप इज नथिंग बट ab रा डायरेक्शन दैट इज द वेक्टर ab बाय इट्स मैग्नीट्यूड सिमिलरली मु कहबी a कैप माने कोन पिले मु कहबी a वेक्टर रा डायरेक्शन किए ताले a वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड सिमिलरली मु कहली xy वेक्टर रा डायरेक्शन किए मु कहबी xy वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मु कहली पिले p वेक्टर रा डायरेक्शन केते मु कहबी p वेक्टर डिवाइडेड इट्स मैग्नीट्यूड एतिक तो बुझिला ओके नाउ एबे मते वेक्टर कहले कोन बुझो वेक्टर कहले मैग्नीट्यूड बुझे आ डायरेक्शन बुझे आज रो क्लास रे केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विषय चर्चा करे आ किछि चर्चा करबिन केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आज सिख नेक्स्ट क्लास रे आउट के आगु बुझीबी ओके वर्तमान पाई ए फार्मूला बिले लिखि दियो मैग्नीट्यूड कोन आ डायरेक्शन कोन लिखि दियो आज दी तीनटा गणित मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऊपर करिया तापर हम आगे बढ़िबा ओके गोटे क्वेश्चन लिखुची वर्तमान पाई इफ A is at 2 4 6 and B is at -1 2 let us 0 so A गोटे पॉइंट जार कोऑर्डिनेट देला ये आ B गोटे पॉइंट जार कोऑर्डिनेट देला ये एबे पचारची फाइंड को पचारची बिले फाइंड A बिटरे ए बी वेक्टर केते ए बीटर कौन पचरला वेक्टर ए बी केते बी बीटर कौन पचरला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी केते मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर ता माने कौन बिले दैट इज ए बी वेक्टर रो मॉड्यूलस सी बीटर पचरची
find the direction of AB, find the direction of AB vector ता माने कौन पिले that is AB vector ऊपर कैप AB vector ऊपर कैप एति की मते करियर अछि बहुत सिंपल पिले फर्स्ट बिटटा करछि पिले AB vector जेतले हम कोई गोटे वेक्टर काढी AB vector सदाळे मन रखिथिबो हेड माइनस टेल हेड रो कोऑर्डिनेट माइनस टेल रो कोऑर्डिनेट ए बी वेक्टर एई जगह रे हेड कोठी अछि हम कोई हेड अछि एट द पॉइंट बी रे टेल अछि एट द पॉइंट ए रे अगेन बी रो पोजीशन केते पिले बी रो पोजीशन -1 तापरे 2 तापरे 0 फेडाण ए इज एट 2 4 6 कहबी 2 4 6 तापरे कहबी -1 माइनस सब्ट्रैक्ट करछि 2 तापर केते पिले 2 माइनस 4 तापर केते पिले 0 माइनस 6 आकु केते लिखी -2 -1 दैट इज -3 आकु केते लिखी -2 आकु केते लिखी -6 अगेन -2 -1 -3 2 -4 -2 0 -6 -6 सो ताले मु कोन लिखिबी मु या लिखिबी कि -3 x cap -2 y cap -6 z cap will be my co-vector will be my okay that is AB cap will be my AB vector प्रथम बीट रा आंसर हला ये फर्स्ट बीट रा आंसर हला ये ए बीट रा आंसर फाइंड AB vector कहते पिले -3 x cap -2 y cap -6 z cap अच्छा एक केस जनी पचारे व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ AB वेक्टर ताले मोर आंसर -3 3 नहीं x कंपोनेंट ऑफ AB वेक्टर x कैप पछपटे जी अछि x कंपोनेंट ऑफ AB वेक्टर एई केस रे मु कहबी x कंपोनेंट ऑफ AB वेक्टर हबो -3 क्लियर सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ AB vector -2 similarly z component of AB vector have a -6 so these are the x component and y component and z component of AB vector किछि देइनी एटा खाली एक्स्ट्रा नॉलेज पे कहली काहे कि पिला एठी माइनस थांती पिला समल 3 कोंदी बहुत जगह मु देखिछि सो x कैप पछपटे g थिबो इंक्लूडिंग साइन g थिबो सी होला x component y component and z component of vector AB x क्या पछपट जी x कंपोनेंट y क्या पछपट जी y कंपोनेंट z क्या पछपट जी z कंपोनेंट ता काम सरला a bit is done next magnitude of ab प्ले magnitude of ab रो magnitude केमति करिवि मु कहबी x क्या पछपटे जी अछि तार स्क्वायर x क्या पछपटे प्ले की अछि -3 अछि सो -3 रो स्क्वायर प्लस y क्या पछपटे जी अछि -2 रो स्क्वायर प्लस z क्या पछपटे जी अछि -6 रो स्क्वायर रो रूट ओवर मु कहबे ठीक है 3 रो स्क्वायर 9 प्लस 2 रो स्क्वायर 4 प्लस 6 रो स्क्वायर 36 सो 36 4 40 9 49 दैट इज स्क्वायर रूट भितरे 49 आंसर केते पिले 7 ताहा एक को जहात होता 7 यूनिट बुझला द मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज 7 मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज 7 नेक्स्ट हला पिले तार डायरेक्शन काढिबा कोन काढिबा डायरेक्शन काढिबा ये सरला को बीट पिले AB वेक्टर मैग्नीट्यूड ये थिला मोर सेकंड बीट सो सेकंड बीट सरला नेक्स्ट हला पिले मोर थर्ड बीट कोन पडिबो थर्ड बीट पचरची एट देख थर्ड बीट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर सो AB वेक्टर एट देखा जाउची यस सो AB वेक्टर डायरेक्शन मु कहबी पिले AB वेक्टर ऊपर कैप AB वेक्टर डायरेक्शन AB वेक्टर ऊपर कैप आ फार्मूला हिसाब रे कोन हबो आ फार्मूला हिसाब रे हबो AB वेक्टर डिवाइडेड बाय AB वेक्टर मैग्नीट्यूड AB वेक्टर डिवाइडेड बाय AB वेक्टर मैग्नीट्यूड पिले AB वेक्टर ऑलरेडी हमें काढी देछे को बीट रे एक नंबर बीट रे AB वेक्टर केते -3x कैप -2y कैप -6z कैप मैं कहबी -3x कैप -2y कैप -6
जेड कैप डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मु काढी देछि कोठी पिला एठी देख 7 सो कहबी डिवाइडेड बाय 7 तले आकु यदि लिखिबी मु कहबी -3 बाय 7 एक्स कैप -2 बाय 7 वाई कैप -6 बाय 7 जेड कैप पिले ये किए ये हबो ए बी वेक्टर कैप ये हबो ए बी वेक्टर कैप इट इज द डायरेक्शन पिले अगेन रिपीट करछि जो भी डायरेक्शन वेक्टर ठीक अछि नै किंत जानिबो जदि ताहार मैग्नीट्यूड नबो जदि 1 आसीबो ताहाले सिए गोटे डायरेक्शन वेक्टर कहिबो और यूनिटी वेक्टर कहा जिवो जहार मैग्नीट्यूड थिबो 1 ताकू मु सदाळे की वेक्टर कहबी ताकू मु सदाळे डायरेक्शन वेक्टर कहबी ताहाले पिले ए बी कैप रो मैग्नीट्यूड जदि नै जिबी मु जानि देबी देख ए बी कैप रो मैग्नीट्यूड जदि एठी नेबी मु भल से जानि परिबी एबे डी बिट भी ऐड कर दोछि पिले सी बिट जे थिला डी बिट थिला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कैप रो मैग्नीट्यूड केते मु कहबी पिले ए बी वेक्टर एठी देखा जाउछि कि ए बी वेक्टर कैप रो मैग्नीट्यूड इज इट विजिबल ओके तो ये इरेज करिया पड़े एटा बुझिगला त नोट डाउन कर दियो आ गोटे बिट न दे लास्ट को देली बिटटा गोटे क्वेश्चन रेडी इरेज कर दोछि एठी कर दोछि मु आ गोटे डी बिट एबे मैनिपुलेट करी करेली डी बिट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए बी कैप फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कैप सो ए बी कैप रो मैग्नीट्यूड्स मु कौन कही पिले ए बी कैप रो एक्स कैप पछपटे की अछि देख -3 बाय 7 रो स्क्वायर करे माइनस रो स्क्वायर कले प्लस 3 रो स्क्वायर कले केते पिले 9 बाय 7 रो स्क्वायर कले 49 डिवाइडेड बाय 4 बाय 49 प्लस 36 बाय 49 टेक द एलसीएम 49 then it is 9 plus 4 plus 36 plus 4 40 plus 9 49 by 49 by 49 answer is equal to square root 1 is equal to 1 मु ऑलरेडी कहि छी जदि गोटे वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर कहिबो ताले तार मैग्नीट्यूड केते हेतिबो तार मैग्नीट्यूड निश्चय 1 हेतिबो से केवल डायरेक्शन जणया पय यूज करा जाय सो आजि पय एति की नेक्स्ट क्लास रे हम आर किछि डिस्कशन करबा आउ किछि टाइप्स ऑफ वेक्टर अच्छी ता ऊपर चर्चा करवा से टाइप्स ऑफ वेक्टर बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन को नहीं कि हबो जेतु मु कहबी व्हाट इज इक्वल वेक्टर नल तो सब पिला घोसी इक्वल वेक्टर समस्त पढेला इक्वल वेक्टर टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वली बोथ ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन अरे भाई मैग्नीट्यूड कोन आ डायरेक्शन कोन ता पूर्व तो मैग्नीट्यूड कोन आ डायरेक्शन कोन जानिथिबा निहाती दरकार सेति भाई मु जिंस कहली व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज डायरेक्शन सो गोटे वेक्टर अछि माने तारा मैग्नीट्यूड थिबा तारा डायरेक्शन थिबो ताले मैग्नीट्यूड काढिबा जान आ डायरेक्शन काढिबा जान तापरे कह गोटे वेक्टर इक्वल वेक्टर की नेगेटिव वेक्टर की पैरेलल वेक्टर की एंटी पैरेलल वेक्टर की कॉन्करेंट वेक्टर जो भी वेक्टर कहूछ कह तो वेक्टर रो मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक वाला मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन सो फर्स्ट गोटे वेक्टर रो मैग्नीट्यूड जाने और तार डायरेक्शन जाने तापर तार कैरेक्टरिस्टिक ऊपर आगु को एक्सप्लोर करे तापर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर आ करे जहा करछु करे तापर सो फर्स्ट लेक्चर मु आज एठी बंद करबी आजिरो वेक्टर आजिरो क्लास रे तुम जानला पिले स्केलर कोन definition of scalar, definition of vector, some example of scalar, some example of vector, then the representation of vector graphically, that is a line segment with arrowhead over it. The line segment will give the magnitude and the arrowhead will give the directions. तापरे कहिला मैथमेटिकली जदि गोटे पॉइंट ए थाए गोटे पॉइंट बी थाए ए रो कोऑर्डिनेट या थाए बी रो कोऑर्डिनेट या थाए ताले ए बी वेक्टर किंत रिप्रेजेंट करिवो तार मैग्नीट्यूड किंत काढिवो तार डायरेक्शन किंत काढिवो अगेन डायरेक्शन वेक्टर माने डायरेक्शन वेक्टर पिले बे लास्ट को भी गोटे डी बिट ऐड कली मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर पिले केते आ तुम कहलो 1 सो ये थिला आज रे लेक्चर आज पय एति कि नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबी टाइप्स ऑफ वेक्टर थैंक यू रीड वेल